वज़ीर-ए-आला तारक रामाराव से सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंदों ने मुलाकात की। शहर के अशोकनगर में रहते हुए ये नौजवान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं और मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने मसाइल से वज़ीर मौसूफ को वाकिफ़ करवाया। ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దాని పేరు పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే. అంటే ఏ రాష్ట్రంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ఉంది. అక్టోబర్లో వాళ్ళు రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసిన దాని ప్రకారం తెలంగాణ 15 నుంచి 59 ఏజ్ గ్రూప్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, అంటే వర్క్ ఫోర్స్ అంటే అదే కదా. సో ఏజ్ గ్రూప్లో మన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు భారతదేశంలో 36 ఉన్నాయి. మొత్తం స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కలిపితే 28 రాష్ట్రాలు, 8 యూనియన్ టెరిటరీస్. మొత్తంలో మన ర్యాంక్ ఎంత తెలుసా? 18. 4.6% ఇస్ అవర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ 36 స్టేట్స్లో మనం 18th, అంటే మధ్యలో ఉన్నాం. వాస్తవాలు ఇవి. కానీ ప్రాపగాండా, సోషల్ మీడియా, హడావుడి, తిట్లు, కూర్చొని కూల్గా ఆలోచించండి. కూల్గా ఆలోచించి నాకు చెప్పండి. లేదన్నా నిజమే, నువ్వు చెప్పింది తప్పు, ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్లీజ్ షో మీ ది డేటా. నేను రేపు ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నదే కంపైల్ చేసి ఒక వెబ్సైట్లో పెట్టి మీకే ఇస్తా లింక్. దయచేసి మీ గ్రూప్లో పెట్టండి, చెక్ చేసుకోమనండి. తెలుగులో ఇస్తాను, ఇంగ్లీష్లో తయారు చేస్తాను వెబ్సైటు. మీరు చెక్ చేసుకోండి. నేను చేసిన తప్పు అయితే యూ పనిష్ మీ, నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే దయచేసి వాళ్ళని అడగండి. అన్న చెప్పిండు, ఇది కరెక్టా కాదా మీరు చెప్పండి, మాకు సమాధానం చెప్పండి అని అడగండి. ఇప్పుడు నేను నిజంగా చెప్తున్నా బ్రదర్, నేను ఒక 7-8 ఏళ్ళు ఉద్యోగం చేసిన. అవతల మాట్లాడేటోడు రాహుల్ గాంధీ ఉద్యోగం చేసిండు ఎక్కడైనా దేశంలో, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా? రేవంత్ రెడ్డి చేసిండా? నేను ఉత్తానే అంటలేండి, మజాక్ కోసం చెప్తలేండి. ఉద్యోగం చేస్తే ఇంటర్వ్యూలకు అపియర్ అయితే దాని బరువు ఏందో, బాధ్యత ఏందో, పరీక్ష రాస్తే దాని కథ ఏందో మాకు తెలుసు. నేను పోటీ పరీక్షల్లో నేను మొత్తం ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్ రాసి ఎంఎస్సీ చదివిన బయోటెక్నాలజీ పూణే యూనివర్సిటీలో. జీమాట్ రాసి న్యూయార్క్లో పోయి ఎంబీఏ చేసిన. తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు అపియర్ అయ్యి నేను ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను. నాకు మా అయ్యే చెప్పలే, అమ్మ చెప్పలే, ఎవరు సిఫారసు చేయలే, నా అంతటి నేనే సంపాదించుకుని ఇవన్నీ. కాబట్టి నాకు కొద్దిగా బరువు ఉంది, బాధ్యత ఉంది. నేను మాట్లాడే మాటల్లో నాకు తెలుసు ఆ కష్టం. वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि किसानों के खेतों में बरखी मोटरों पर बरखी मीटर्स कांग्रेस रियासतों में लगाए गए हैं। उन्होंने सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बशमूल 12 रियासतों में बरखी मोटरों पर मीटर्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पड़ोसी रियासत कर्नाटक में भी हुकूमत ने बजट में इस बात का इशारा दिया है। కర్ణాటక అసెంబ్లీలో మొన్న కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో కూడా మేము కూడా మీటర్లు పెడతాము, 0.5% అదనంగా డబ్బు కేంద్ర ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటామని చెప్పి తెలంగాణ కర్ణాటక అసెంబ్లీలో కూడా స్పష్టంగా వాళ్ళు కూడా పెట్టేశారు. అంటే ఏందన్నట్టు, ఇలా కాంగ్రెస్ పాలించే రాజస్థాన్లో మీటర్లు పెడుతున్నారు, కాంగ్రెస్ పాలించే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మీటర్లు పెడుతున్నారు, నిన్నగాక మొన్న గవర్నమెంట్ వచ్చిన కర్ణాటకలో కూడా మీటర్లు పెట్టమని అసెంబ్లీలో వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కాగితం. అంటే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కూడా రేపో మాపో మీటర్లు వస్తాయి. దీన్ని బట్టి తప్పిపోయి కానీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే రేపు కర్ణాటక ఎన్నికనే మళ్ళీ ఇదే కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో కూడా మీటర్లు పెట్టదన్నట్టే కదా. దయచేసి రైతులారా ఆలోచించండి. బీజేపీ వాడైతే కుల్లం మీటర్లు పెట్టనే పట్టే. ఇక కాంగ్రెస్ వాడు ఏమైనా తక్కువ ఉన్నాడా అంటే రాజస్థాన్లో పెట్టిండు, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో పెట్టిండు, కర్ణాటకలో పెడతానని అసెంబ్లీలో పాస్ చేసిండు. రేపు తెలంగాణలో కూడా మీటర్లు పెట్టడన్నట్టే కదా. उधर पीसीसी रेवंत रेड्डी के जलसे में पुरजोश राय दहिंदों ने रक्स किया। रेवंत रेड्डी अचंपेट में जलसे से खिताब कर रहे थे कि जलसे को सुनने के लिए पहुंचे राय दहिंदों के जोश खरोश को देखकर उन्होंने तकरीर रोक दी, क्योंकि उनकी तकरीर के दौरान ही स्टेज के सामने ठहरे हुए कई अफराद ने रक्स शुरू कर दिया। अवाम के जोश खरोश और कांग्रेस के लिए तायद को देखते हुए रेवंत रेड्डी ने वहां कांग्रेस की तायद में तैयार करदा तेलुगु गीत को बजाने की हिदायत दी। इस गीत को बजाने के बाद अवाम के जोश खरोश में मजीद इजाफा हो गया और उन्होंने रक्स शुरू कर दिया।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस यकीन का इजहार किया है कि बीआरएस रियासत में तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी और केसीआर वजीर आला बनेंगे। उन्होंने TUWJ की जानिब से मुनक़िदा सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान कहा कि गोशामेल में सिर्फ 22% मुसलमान है और मजलिस बीजेपी को शिकस्त देना चाहती है, इसीलिए मजलिस ने अपना उम्मीदवार इस हल्के में नहीं ठहराया है। मजलिस बीआरएस की इस हल्के से तायद कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स के कांग्रेसी उम्मीदवार ने HCA में कई धांधलियाँ की। मुरादाबाद में जब वो MP थे तो उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। जुबली हिल्स में 1% भी तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। आज भी हल्के के अवाम परेशान है, इसीलिए मजलिस ने इस हल्के से अपना उम्मीदवार ठहराया है। इस हल्के से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के जलसे को पुलिस की जानिब से 5 मिनट पहले रोकने के मामले पर कहा कि किसी भी कायद की तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम अहमियत का हामिल होता है। जलसे को ख़त्म करने का वक्त 10 बजे शब था, ताहम 10 नहीं बजे थे और इसमें 5 मिनट बाकी थे। 5 मिनट में कोई भी लीडर बहुत कुछ बोल सकता है। पुलिस की ये हरकत नामुनासिब है। पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है वो जानते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग इरागड्डा से हमारे कॉर्पोरेटर जीते, जानी मियां, वो पुराने जानी में अलग है। फिर शरीफ साहब जो प्रेजेंट हमारे कॉर्पोरेटर के हस्बैंड हैं, 3 मरतबा वो फैमिली वहां से जीती। और शेखपेट जो सब वन ऑफ द बिगेस्ट डिविजन्स है जुबली हिल्स का, वहां से हमारे फराज साहब जो भी कैंडिडेट है जुबली हिल्स के, 2 मरतबा कॉर्पोरेटर है। और हम लोग लास्ट GHMC इलेक्शन में 4 सीट लड़े, जिसमें से मेरे ख्याल से 28 और 29,000 वोट लिए और कांग्रेस पार्टी खाली 1000 वोट ली पूरे जुबली हिल्स में। तो हम तो शुरू से लड़ रहे, तो इनको हराने को अगर आप बात कर रहे तो फिर नामपल्ली में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे आप? कारवान में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे? ये है ना, आप लड़ रहे ना। 4 मीनार में आप दिए कैंडिडेट, क्यों दिए आप? तो ये बोलना गलत है। इलेक्शन है, कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है इलेक्शन, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। यूपी की प्रेस्टिजियस सीट्स में मुरादाबाद आती, वहां पर इनको दोनों, हर समाज इनको वोट दिया, कुछ काम नहीं किए, पलट के नहीं देखे, उनकी पार्टी उनको रिपीट नहीं करी। अगर काम करते रिपीट करना था ना उनको, जो बोल रहे आज। और वहां बीजेपी जीत गई। फिर 2014 में इनको राजस्थान में दिए, सवाई माधोपुर टोंक, 4 लाख वोट लिए, कभी पलट के नहीं गए वहां पर आप। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराजुद्दीन के इंतखाबी जलसे से सुल्तान नगर इरागड्डे में खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के जुबली हिल्स के उम्मीदवार हिमाकत की बातें कर रहे हैं कि मजलिस ने अपना उम्मीदवार जुबली हिल्स से क्यों खड़ा किया। इंतखाबात में कोई भी कहीं से भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। अगर उनकी बात सही है तो फिर कांग्रेस ने नामपल्ली, कारवन और दीगर हल्कों से अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा किया है। सदर मजलिस ने कहा कि जुबली हिल्स हल्का जो पहले खैरताबाद कहलाता था, इसका मजलिस से तकरीबन 35 साल पुराना ताल्लुक है। जुबली हिल्स में मजलिस के 2 कारपोरेटर्स शेखपेट और एर्रागड्डा डिवीज़न में बरसर खिदमत हैं, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार की बातें नाकाबिल फ़हम हैं। सदर मजलिस ने कहा कि कांग्रेस के जुबली हिल्स के उम्मीदवार पर 4 FIR पैसों के गबन के दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अहकाम पर ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कुछ काम नहीं किए TRS वाले जुबली हिल्स में। यहां पर आवाम के मसाइल के अंबार हैं, बहुत मुश्किलात हैं। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि इस बार आप देख समझ के वोट दीजिए। आपको एक बेहतरीन फाल हरकियाती MLA की जरूरत है। और मुझे ये बताया गया कि गोपीनाथ की तबीयत भी आजकल अच्छी नहीं रहती। अल्लाह करे उनकी सेहत अच्छी हो जाओ।
मगर जब आप अमली सियासत में हैं, आपको अवाम के दरमियान में रहना पड़ता है, अवाम की खिदमत करना पड़ता है आपको। और हमारा उम्मीदवार राशिद फराज, आप शेखपेट की अवाम से पूछ लो, करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम राशिद फराज ने शेखपेट में करवाए। वहां पर सख्त मुकाबला होता है राशिद का, मगर बीजेपी को हराए, टीआरएस को हराए, कांग्रेस तो खैर वहां पे नहीं है। ये काम आपके लिए बहुत जरूरी है कि जुबली हिल में आप मजलिस को मजबूत करिए। और जमहूरियत की हकीकत यह है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा एमएलए होंगे, उनके और मसाइल को हल किया जा सकेगा। अकबर यूनिवर्सिटी कायद मजलिस मुखराना पार्टी ने अपने इंतखाबी जलसे में रुकावट पैदा करने की कोशिश पर इंस्पेक्टर पुलिस संतोष नगर पर बरहमी का इजहार किया। ललिता बाग में कायद मजलिस का जलसा जारी था कि इंस्पेक्टर ने इस जलसे में रुकावट की कोशिश की, जिस पर कायद मजलिस ने उन्हें वापस भेज दिया और कहा कि जलसे के अख्ताम के लिए अभी 5 मिनट का वक्त है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आपको फिर चलिए चलिए की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते या हम। आपसे यही कह रहा था, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो और कोई कुछ करने वाला नहीं। बीजेपी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल विजय शांति ने तंजिया तौर पर पूछा कि अवाम केसीआर को क्यों वोट दें। उन्होंने मेदक असेंबली हलके के कांग्रेसी उम्मीदवार एम रोहित की कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए राय दहिंदों से कई सवालात किए। विजय शांति ने जज्बाती अंदाज में कहा कि क्या कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए की बेकायदगी पर केसीआर को वोट दिया जाए। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना में शराब की दुकानात कायम करते हुए बहनों को परेशान करने वाले चंद्रशेखर राव को वोट दिया जाए। तलबा को ड्रग्स की लानत का आदी बनाने पर क्या उनको वोट दिया जाए। चारमीनार के मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को वोट देने की अपील की। इस दौरे के मौके पर इंचार्ज मोहसिन मलाला, मजलिसी कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। जुबली हिल्स के बीआरएस उम्मीदवार पर एक खातून राय दहिंदा ने शदीद बरहमी का इजहार किया।
उन्होंने कहा कि उनके मसले की यकसुई के लिए कोई भी नहीं आया। खातून ने कहा कि कई मरतबा MLA से इनके लोग रुजू हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम नहीं किया गया। खातून ने पूछा कि वोट लेने के लिए आने की हिम्मत कैसे हुई। याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज इंचार्ज याकूतपुरा इलेक्शन यासर अरफात के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने दोशा खाया। इस मुहिम का आगाज डिकाशन टी पॉइंट से हुआ। इस मुहिम के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया, जिनमें नारायण जूनियर कॉलेज, वेंकटेश्वरा टेम्पल, कुली कुतुब शाह ITI, अनवारुल मदरसा और संतोष नगर के दीगर इलाके शामिल थे। मजलिसी कारपोरेटर्स, साबिक कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। हल्के मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा, दवीरपुरा और दीगर इलाकों में आज इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और उन्हें वोट देते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। राय दहिंदों ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया। सदर BC वेलफेयर एसोसिएशन R श्रीनिवास ने कहा है कि BC तबके में सियासी बेदारी के लिए जद्दोजहद करते हुए उनको खुसूसी सियासी प्लेटफॉर्म पर लाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इन इंतखाबात में BC उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि BC तबके ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद की थी, ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद इस तबके से शदीद नाइंसाफ़ी की जा रही है। जनगांव हल्के में पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने BRS हुकूमत के फलाही और तरक्याती कामों की तफसीलात से आवाम को वाकिफ करवाते हुए वोट देने की ख्वाहिश की। उन्होंने इस मौके पर खवातीन के साथ रक्स भी किया। BRS के खैरताबाद के उम्मीदवार डी नागिंदर ने कहा है कि सदर PCC रेवंत रेड्डी रियासत में तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS की फलाही स्कीमात से आने वाले इंतखाबात में उनकी कामयाबी होगी। जुबली हिल्स डिवीज़न में BRS के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत के फलाही कामों की तफसीलात से राय दहिंदों को वाकिफ करवाया। वरंगल की कांग्रेसी उम्मीदवार कोंडा सुरेखा इंतखाबी मुहिम के दौरान अचानक BRS पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पहुंच गई। समझा जाता है कि उन्होंने वहां पर मौजूद BRS कायदीन से वोट कांग्रेस को देने की ख्वाहिश की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। मुनासिब बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए निज़ाम कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई और सूरत हाल कशीदा हो गई। इन तलबा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनको ग़िज़ा और पानी की कमी का सामना है। इन तलबा ने कहा कि इनके मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले की यकसुई की ख्वाहिश करते हुए वो प्रिंसिपल से रुजू हुए, ताहम इस मसले का हल नहीं निकाला गया और कोई रद्द अमल भी सामने नहीं आया, जिसके नतीजे में वो एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। ట్రాఫిక్ ఇప్పటిదాకా
ఆగమ్మా అరే మీరు ఎట్టమ్మా తల్లి మీరు ఎట్లా మాట్లాడి మేము ఏమంటున్నాము మీరు ఇటు పక్క కూర్చోండి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయండి ఈ రోడ్డు ఈ ఫుట్పాత్ మీద కూర్చోండి కూర్చుంటే మా పనులు మాకు తెలుసు కదా మాకు తెలవదా ఏం లేదు మాకు తెలవదా కాదు వాళ్ళు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలిగించవద్దు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలిగించవద్దు ఎలక్షన్ టైము कोल्हापुर के आज़ाद उम्मीदवार श्रीशा के भाई पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। पद्दाकुत्तापल्ली मंडल के वेनाचरला देहात में इंतखाबी तशरीह मुहिम के दौरान नामालूम अफराद ने उनके भाई पर हमला कर दिया। इस वाक़े में उनके भाई जख्मी हो गए। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। श्रीशा ने कहा कि उन्होंने क्या जुर्म किया जिस पर यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वोट से महरूम होने के खदशे के तहत बाज़ सियासी कायदीन ने इनके भाई पर हमला करवाया है। विशाखापट्टनम में लारी के ऑटो को टक्कर के नतीजे में 8 स्कूली तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा चाशुम्बे की सुबह को उस वक्त पेश आया जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाले ऑटो को लारी ने टक्कर दे दी। इससे टक्कर के नतीजे में ऑटो उलट गया जिससे सबब तलबा जख्मी हो गए। इन तलबा को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पटकजोरी की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। पाशा मेलारम में वाक़े NSN कंपनी के दूसरे यूनिट में अचानक आग लगी। स्टोरेज विंग में केमिकल ड्रम्स की ज़ख़ीराअंदोज़ी के बायस आतिशबाजी की इत्तला मिली है। आग लगते ही केमिकल के ड्रम्स फट पड़े जिसकी वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इस वाक़े के बाद 6 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल HP डेस्कटॉप लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।